women can wear our sari within 15 to 30 seconds, and it has a pocket, so you can keep your as मैंने पिच में भी दिखाया कि हम कितनी सारी चीज़ें रख सकते हैं पॉकेट में। मैं आपको भी गिनूंगी कि हमारे लिए साड़ी पहनकर पूरा दिन फंक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एपिसोड जनवरी 27 रात को 8 बजे एयर हुआ था, और 11 बजे से हमें ऑर्डर्स आने चालू हो गए थे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से ही हमने जो हमारे पहले 100 ऑर्डर, पहले 1000 ऑर्डर सारे वहीं से आए हैं। डॉक्टर्स, स्पेशली सर्जन्स, उन्हें ज़्यादा पसंद है रेडी टू वेयर साड़ियाँ। लॉयर्स ऑफ कोर्स, न्यू मदर्स, क्योंकि उनके पास एक टॉडलर है, उनको संभाले कि साड़ी संभाले। 40 प्लस वुमेन, 45 प्लस वुमेन आर ऑल्सो very much interested in taking ready to wear sari. People are not just interested in a product anymore. They are also Right. interested in the how this product is reaching them. Hi everyone, welcome to a new episode of Growthcast podcast. Today I have with me Swati, who is founder of Aseem Shakti, and she has recently also been featured in Shark Tank India season 4. Swati, welcome to the podcast and thank you so much for taking out time. Before I start with my set of questions, wanted to understand your journey, the story behind Aseem Shakti. Sure. First of all, thank you, Shashank, for inviting me. I'm very excited to be here. And to answer your question, my journey. So I have been working in social impact. I started my career as a teacher and have been working in social impact for a couple of years before starting my preparation for UPSC. So I got into UPSC because I always wanted to do something which can help people at a larger scale. So during my preparation, I learned a lot about self-help groups and a lot of initiatives that are run by government for women. And there were these women in my neighborhood. I have been witnessing their journey since I was a kid, and I thought I would apply that knowledge here for solving their problems, and that's how Aseem Shakti started. And you applied to Shark Tank recently. So application process कैसे रहता है? And when you decided कि it's high time I should go ahead with my application और Shark Tank पे apply करते हैं अब? Hmm. I think in second season also I had applied, and I had cleared first round, and in the second round I could not go through that. But luckily, for in the fourth season I got a call from Shark Tank team, and they they talk to you for a whole they talk to you for an hour or so. They understand your business model, your numbers and everything, and post that they will suggest you to apply through like fill their forms. They have forms. So first, that is an entry level preliminary form. When you clear that round, there is a very detailed form that you have to fill. It takes like 30 minutes or so, 30 minutes to 1 hour. You have to upload a video pitch as well. Then third is an audition round where you have to go to their audition venue, and then fourth is the episode. Got it, got it. And can you walk me through the day of the episode? Excitement tha, nervousness thi. What were the feelings that were flowing through you when you went to Shark Tank India? Hmm. बहुत बहुत नर्वसनेस थी क्योंकि when I got to know that we have been selected and we for the episode round, I thought I had like a week, 8 to 10 days of time. I thought I'll first clear whatever work that I have. I'll first do that, and last 4 5 days I'll keep for Shark Tank, for Shark Tank preparation, which I did. My last 4 5 days were completely dedicated to Shark Tank. No food, no sleep. A lot of things happened, but I could not get time to properly prepare for the pitch because they do a lot of due diligence. They do a lot of they keep you busy in the last 4 5 days. Uh, Right. Due diligence on your documents, due diligence on what are you going to wear, your costumes. The team will ask you different. There are many teams: business team, this team, that team, finance team. They'll sit with you. They'll ask you many questions. So you are there in their rehearsal areas for entire day. Right. So I kept, and just before the episode previous day I had not slept at all.
So, and it was mine was the first pitch. So I was really nervous because in my head I thought I'm not prepared for this, not prepared for this. So I was like really nervous, but the Shark Tank team was really nice. They held my hand and they said it's okay, take your time. I was feeling like I think I had low blood pressure, so they kept electrol water for me, chocolates for me behind the stage. So they were very kind. But yeah, I was super nervous. I don't think I've been as nervous in my life before. So sorry. Yeah. Yeah. No worries. Yeah, I think that is a big day for any startup. So nervousness थोड़ी तो आती है. But if I talk about the business, can you let audience know what is Aseem Shakti? What is your core value proposition? आप अभी क्या problem solve कर रहे हो? Hmm. So business wise, we are making like product wise, we are making ready to wear sarees with pockets. So sarees, as you know, India में तो साड़ी बहुत ही पॉपुलर है. Right, बहुत सारी लड़कियां मॉडर्न इंडियन वुमेन ऐसी हैं जो साड़ी पहनना चाहती है, लेकिन इट्स अ स्ट्रगल टू वेयर अ साड़ी. और right. हमारे मॉडर्न इंडियन वुमेन में मैं अपने आप को भी गिनूंगी कि हमारे लिए साड़ी पहनकर पूरा दिन फंक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो एज मच एज वी वुड लाइक हम पहन नहीं पाते. So that is the problem that our product is solving, that you can wear our sari, women can wear our sari within 15 to 30 seconds, and it has a pocket, so you can keep your as मैंने पिच में भी दिखाया कि हम कितनी सारी चीजें रख सकते हैं पॉकेट में, phone, Right. keys, everything. So that is the problem that we are solving on product level. Apart from that, of course, Aseem Shakti is a purpose-driven brand where we are also trying to create back in May. We are trying to create new work opportunities for women who have never worked before, women who are homemakers and want to get into the workforce, in the paid workforce. So that is, we are trying to bridge that gap there. Got it, got it. And सारी startups का स्वाति एक जो सबसे बड़ा problem होता है वो होता है कि getting their first 100 orders. So how you solve for this problem in your startup? आपने क्या क्या कुछ initiatives लिए या what are the things that you tried for that? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से ही हमने जो हमारे पहले 100 ऑर्डर, पहले 1000 ऑर्डर सारे वहीं से आए हैं. हमने बहुत पॉपअप्स भी करे थे छोटे मोटे, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी जो हमें कंटेंट से मिली है, इट वाज जस्ट मी विद एन आईफोन एंड माय सिस्टर पोजिंग. एंड हम हमारे शुरू के आई थिंक 12-14 हज़ार फॉलोअर्स जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आए हैं. तो हमारे पास वेबसाइट भी नहीं थी उस टाइम पे, सो वी वर जस्ट टेकिंग ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, and that's how we got our 100 customers until one of our videos went viral. And then overnight I had to set up a Wix shop. Wix वेबसाइट पे मैंने खुद बैठकर उसको Right, ओवरनाइट एक वेबसाइट बनाई थी, ओवरनाइट प्रोडक्ट्स अपलोड करे थे, बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड टू टेक इतने सारे इंक्वायरीज. वी वर गेटिंग right. इन्यूमरेबल कॉल्स. तो वहाँ से एक जो पुश मिला था कि अब थोड़ा डिजिटल होना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स होना पड़ेगा, वो हमें सारा कुछ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मिला है. I think social media is a big funnel for any of these startups जो D2C कैटेगरी में, क्योंकि I think आप डायरेक्ट कस्टमर को अपना वैल्यू प्रॉप बता सकते हो. एंड डू यू ऑल्सो फील कि फाउंडर्स गोइंग फॉरवर्ड विल ऑल्सो बिकम इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन हुई थी शार्क टैंक में ऐसी, बिकॉज यू हैव टू टॉक अबाउट योर ब्रांड ऑल्सो. सो इज दैट समथिंग दैट यू फील कि जैसे आपको लगा कि 10 to 14,000 was possible because you were out there talking about your brand? Is this something that we'll see in future also? Actually, I was not out there talking about my brand, which I think I made a very big mistake. क्योंकि अगर मैंने किया होता तो शायद हमारे और फॉलोअर्स होते. Right, तो उस टाइम पे क्योंकि आई एम वेरी कैमरा शाय एंड बहुत सारी, क्योंकि मैं सोलो फाउंडर हूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, और कंटेंट क्रिएशन डिमांड्स कमिटमेंट. कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल आसान काम नहीं है. तो अब शार्क टैंक के बाद क्योंकि फाउंडर्स को फाउंडर लेड मार्केटिंग इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड नीड ऑफ द आवर. तो अब right. मुझे जैसा आपने कहा कि फाउंडर्स इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, फाउंडर्स कंटेंट क्रिएटर्स जरूर बन रहे हैं और बनना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है. तो आई थिंक Right. मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था ये, मतलब शार्क टैंक और नो शार्क टैंक कंटेंट क्रिएशन तो मुझे
करना चाहिए था। एंड लोग, पीपल आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन अ प्रोडक्ट एनी मोर, दे आर ऑल्सो Right, इंटरेस्टेड इन द हाउ दिस प्रोडक्ट इज रीचिंग देम, व्हाट इज right, द स्टोरी बिहाइंड इट। लोगों को जानना है कि कितनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एक बिजनेस फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो right. ये तो बहुत जरूरी है Got कंटेंट it. क्रिएशन फॉर फाउंडर, बिकॉज वी नीड टू टॉक टू आवर ऑडियंस डायरेक्टली, और हम उनके क्वेरीज और जो भी क्वेश्चंस है और जो भी चीजें वो जानना चाहते हैं वो डायरेक्टली उन्हें बता सकते हैं। Right, right. And if I talk about Shark Tank India, तो उसका impact क्या है आपके सेल्स नंबर पे? What was the impact pre and post episode? डेफिनेटली बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहा है सेल्स नंबर्स पे भी। और जैसा मैंने बताया, लोग स्टोरी जानना चाहते हैं, तो हमारी स्टोरी को जो रीच मिली है और जो विजिबिलिटी मिली है और लोगों को पसंद आई है, उससे बहुत, और लोग स्टोरी जानना चाहते हैं, आप जैसे लोग जो हमें पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। हमारे सेल्स नंबर आई थिंक 5x बढ़ गए थे। Nice. हमारा एपिसोड जनवरी 27 रात को 8 बजे, माइन वॉज द थर्ड पिच, सो कुछ 9:30-10 बजे एयर हुआ था, और 11 बजे से हमें ऑर्डर्स आने चालू हो गए थे। तो यस, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ गोइंग टू शार्क टैंक। And if I talk about your pitch, were there any particular moments जहाँ पे लगा नहीं ये थोड़ा सा और better हो सकता था और ये अच्छा गया, that you would like to share with the audience? यस, मैनी, आई फील, आई थिंक सबके साथ ही होता है। मैंने जितने भी फाउंडर से बात करी, मुझे लगा शायद मैं ही ऐसे फील कर रही हूँ, बट सबके साथ जिनके पिच बहुत भी अच्छी गई है, वो भी ये सोचते हैं कि शायद ये अच्छा हो जाता। तो मुझे लग रहा था कि जब मैं पॉकेट से चीजें निकाल रही थी और अनुपम कह रहे थे कि अब चश्मा निकलेगा, अब दवाइयाँ निकलेंगी। तो अगर अगर मैंने लॉजिकली सोचा होता तो निकलना चाहिए था चश्मा क्योंकि Right. लेंस कट, यू नो। तो आई थिंक वो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर वो चश्मा कह रहे हैं और मैं निकाल रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता। अदर देन दैट, ऑफ कोर्स, नंबर्स और थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाने चाहिए थे। और सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल सोई नहीं थी और बहुत नर्वस थी। हमारा इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। हमारी वेबसाइट जो मैंने बनवाई थी बहुत अच्छी थी, पर मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। मुझे याद ही नहीं आया कि आई हैव टू शो दिस वीडियो। हमारे वीडियो 4.5 मिलियन व्यूज वीडियो पे है, रील्स पे। Right. पर मैंने वो दिखाया नहीं। अगर मैं दिखाती तो शायद और अच्छी पिच जाती मेरी। मैं प्रोडक्ट दिखाना भी भूल गई। जब मुझे चेक मिल गया उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मुझे, सो आई थिंक वहाँ पे खड़े-खड़े बहुत सारी चीज़ें, बहुत ब्रेन फॉग हो रहा था मुझे। तो मुझे 4 दिन तो बहुत डिप्रेशन हो गया था कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं किया। तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जो मैं शायद और अच्छा, अब आई विश मुझे और एक मौका मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली एक ही मौका मिलता है। पर ठीक नहीं है, नहीं, जो you definitely did really well in the tank. मेरे को ये समझना था कि were there any particular sharks that you were eyeing कि नहीं इस एपिसोड में जाते समय these are the people जहाँ पे maximum से एनर्जी आ सकती है, तो maybe if they come on board it'd be super awesome. विनीता, आई थिंक, और मैं इतना ज़्यादा विनीता, मतलब विनीता और अनुपम 2 शार्क्स मेरे ज़हन में थे, पर विनीता पे मैंने इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रखा था कि मुझे सिर्फ़ यही याद था कि मैं पॉकेट में से शुगर की लिपस्टिक निकालूँगी। आई थिंक अगर मैंने सारे शार्क्स को इक्वल वेटेज दिया होता, तो मैं लेंसकार्ट का चश्मा भी निकालती। तो Right. बट मुझे बहुत इच्छा थी कि विनीता आ जाए। तो जब विनीता ने भी मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। बट आई एम ग्लैड कि उन्हें साड़ी अच्छी लगी एटलीस्ट। हाँ, I मूड think ठीक all किया कम sharks से are कम। very humble in that sense because I've also heard from other contestants कि they are very humble. But does it, as a contestant, does it become very overwhelming कि जब खुलता है gate और you are out there and then there are these people sitting जहाँ पे आपको pitch करना है? हाँ, हाँ, बहुत डरावना एक्सपीरियंस भी रहता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं ऑब्वियसली शार्क्स के। तो मैं बहुत डर रही थी उस चीज़ से कि अगर मुझे कुछ नेगेटिव बोला गया तो मैं कैसे रिएक्ट कर पाऊँगी? मैं रो ना दूँ स्टेज पे, सबसे बड़ा टेंशन मुझे ये था, मुझे अपने आप को रोने से बचाना है। तो और मेरी पिच सबसे पहली थी और वो वॉक की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो फर्स्ट वॉक, सेकंड वॉक, थर्ड वॉक में जब दरवाज़ा खुला तो मुझे सीधे अनुपम दिख रहे थे। मुझे रियलाइज़ेशन नहीं था कि शार्क्स बैठे हैं। तो काफ़ी मतलब नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा होती है और टेंशन भी होती है कि क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, और कुछ
बुरा ना बोल दे जो डायरेक्टली ब्रांड को इम्पैक्ट करे, राइट, क्योंकि राइट, राइट। ऐसे भी होता है, बहुत सारे हुँ। ब्रांड्स के साथ हुआ भी है। तो वो मेरा डर था बहुत, बट लकीली सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नहीं, नहीं, आई थिंक एपिसोड वेंट रियली वेल। देयर इज़ वन थिंग आई लाइक टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी कि साड़ी में प्राइसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सो हाउ डू यू टैकल दिस? बिकॉज़ इंडियन कंज्यूमर तो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। सो बिल्डिंग अ नीश इन देयर माइंड इज़ अगेन अ डिफरेंट बॉल गेम। सो हाउ यू आर टैकलिंग दिस? तो प्राइसिंग का डेफिनेटली बहुत ही बड़ा रोल होता है, डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है कभी-कभी। और प्राइसिंग कस्टमर का वैल्यू परसेप्शन भी क्रिएट करता है, आपका जो एमआरपी है। राइट, तो क्योंकि रेडी टू वेयर साड़ी स्टिल अभी थोड़ा एक नया प्रोडक्ट है, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो पहली बार ऐसा कुछ खरीद रहे हैं, रेडी टू वेयर साड़ी विथ पॉकेट। तो एक दे आर स्केप्टिकल, उन्हें थोड़ा-सा डर लगा रहता है कि कोई गिमिकी प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। तो एक एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उन्हें रिस्क कम लगे। Obviously, there are many other factors like offering cash on delivery and all to de-risk it for the customer. राइट, But at the same time, it has to be fair to the value that we are creating. Fair wages, innovation, quality. We don't compromise on quality. So राइट, it's important that your MRP is your pricing is aspirational as well as accessible for the customer. So हाँ, राइट। स्पेशली फॉर द इंडियन कस्टमर। बट आई थिंक इंडियन कस्टमर अभी बहुत जागरूक भी हो रहा है। उन्हें पता हुँ, है, स्पेशली जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि व्हाट वैल्यू दे आर गेटिंग। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, वो जानना चाहते हैं कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। स्टोरी So क्या है? they also understand if your story is brought out correctly, transparently, I would say, if you're transparent. Got it. And if I talk about business split, abhi how much is coming from your own website and these marketplaces which are there, say Myntra is there, Ajio is there, तो अभी आप यहाँ पे भी listed हो? हम्म, आई थिंक 95% तो हमारी वेबसाइट से ही आ रहा है। Great. बाकी सारा अभी अभी हम बहुत सारे मार्केट प्लेसेस पे हैं भी नहीं, सिर्फ मिंत्रा और अमेजोन पर ही है। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू अदर मार्केट प्लेसेस एज वेल, बट आवर वेबसाइट वर्क्स द बेस्ट फॉर अस। 95% ट्रैफिक वहां से आ रहा है, सेल्स। Got it. And are there any user insights that you find very exciting या interesting कि नॉर्थ से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, साउथ से ज़्यादा आते हैं या पर्टिकुलर पॉकेट्स जो लोग सोच भी नहीं सकते उधर से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं? जैसा बहुत सारे इनसाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बट जैसे आप बता रहे हो, जो सरप्राइजिंग इनसाइट है, जैसे शुरू करते वक्त मुझे भी लगा था कि जो यंगर लड़कियां हैं, हुँ, 21 to 30 के बीच में, वो हमारी टारगेट कस्टमर होंगी। बट राइट। दैट्स नॉट ट्रू। डेटा बेसिस पे हमें पता चला है यंगर लड़कियां और मेट्रो सिटीज में। पर डेटा हुँ, देखकर हमें पता चलता है कि 40+ women, 45+ women are also very much interested in taking ready to wear साड़ी। और क्योंकि मोस्टली दे आर मैरिड एंड हैव किड्स, सो एक मैरिड औरतों का ऑब्लिगेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है साड़ी पहनने का, पूजा में, घर पे कुछ है। तो आई थिंक हमने वो शुरू में बहुत अवॉइड इग्नोर कर दिया था, बट नाउ विद डेटा नाउ वी नो, हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हैं कि डॉक्टर्स, स्पेशली सर्जन्स, उन्हें ज़्यादा पसंद है रेडी टू वेयर साड़ियाँ। लॉयर्स ऑफ कोर्स, न्यू मदर्स, क्योंकि उनके पास एक टॉडलर है, उनको सँभाले कि साड़ी सँभाले। तो ये राइट, सारी चीज़ें बहुत अच्छे इनसाइट्स हमें मिले हैं, जो हमें लगता था कि मेट्रो सिटी से ज़्यादा आएँगे, वो भी सच नहीं है। टियर 2 सिटीज़ पे से भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं, और टियर 2 सिटी में एक्चुअली बहुत लॉयल कल्ट फॉलोइंग देखी है मैंने, मोर देन मेट्रो सिटीज़। आई थिंक बिकॉज़ मेट्रो के लोगों को ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। थोड़ा और राइट। मुझे स्टडी करना पड़ेगा, बट जो हम अभी तक टियर 2 सिटीज़ में फोकस नहीं कर रहे थे, थोड़ा अब हम, और वील डबल डाउन ऑन दैट। सो गॉट दोज़ इट। आर वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स फॉर मी। एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर कलर जो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो जाता है बहुत क्विकली लाइक आई सी रेड कलर मोस्टली सो इज दैट द केस या देयर आर डिफरेंट कलर्स आल्सो दैट सेल ऑफ लाइक एनीथिंग? यहाँ पे भी सरप्राइजिंग है कि इंडिगो बहुत ज़्यादा सेल होता है, इंडिगो। ओह, जबकि यस, मुझे भी लगा था कि पिंक, रेड, येलो ये सारी चीज़ें ज़्यादा सेल करेंगी, जो कि करती भी हैं। बट इंडिगो कलेक्शन सेल्स द मोस्ट, स्पेशली द इंडिगो पैशन वन, जो मैंने पहना था। मैंने इसीलिए पहना था कि दैट इज़ आवर बेस्ट सेलर।
तो राइट। जबकि इंडिगो में होता ये है कि जो ओरिजिनल इंडिगो की निशानी यही है कि वो ब्लीड करता है शुरू के कपल ऑफ वॉशेस में। फिर भी इंडिगो की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, इंडिगो को पसंद इतना ज्यादा किया जाता है कि बेस्ट सेलर तो वही है। ओह! गॉट इट, गॉट इट। एंड कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट भी आपको लगता है क्या कि दिस इज़ द प्राइस पॉइंट दैट सेल्स द मोस्ट, मेबी एक प्रीमियम कैटेगरी या सब प्रीमियम कैटेगरी में जो निकलता है व्हेन इट कम्स टू साड़ी? एंड फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट इज, सिंस 50% ऑफ माय फॉलोअर बेस इज वुमेन प्रोफेशनल्स, सो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो साड़ी खरीदते टाइम अवॉइड करनी चाहिए? हम्म सो प्राइस पॉइंट जैसे मैंने बताया, एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट तो जो हमारी मल कॉटन साड़ीज हैं, सबसे सस्ती हुँ, साड़ी वेबसाइट पे आपको वही मिलेंगी। दे आर आर बेस्ट सेलर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीडे ऑफिस वेयर। राइट, So that is one. Second is what mistakes women make while या, buying sarees. So राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता सकती हूँ। ऑफलाइन तो मोस्टली यही होता है कि फैब्रिक की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो समटाइम्स जब वो वेंडर्स बोलते हैं कि ये हैंडलूम है, ये ऐसा है, हैंडमेड है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, वो स्क्रीन प्रिंटेड होता है, वो पावर लूम होता है। जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट पावर लूम को हैंडलूम बोल के अगर बेच रहे हैं तो दे आर डेफिनेटली चार्जिंग यू अ प्रीमियम। सो राइट, आई थिंक वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई सिल्क हैंडलूम बोल के बेच रहा है तो सिल्क मार्क ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट होता है, यू कैन आस्क फॉर दीज़ थिंग्स। That is one. राइट, That is for offline purchases. For online purchases, definitely you need to be more aware. पहले तो डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लेना चाहिए। जैसे हमारे वेबसाइट पे हम अगर पावर लूम है तो हम पावर लूम लिखते हैं, हैंडलूम है तो हम हैंडलूम लिखते हैं। जो भी डिटेल साड़ी के है, जो भी प्रिंट है, डिजिटली प्रिंटेड है तो हम लिखते हैं, हैंड प्रिंटेड है तो हम लिखते हैं। तो आप प्लीज उसको पढ़िए, क्योंकि अगर आप हैंडलूम समझ के पावर लूम ऑर्डर कर रहे हैं और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, देन यू विल हैव टू गो बैक एंड चेक की डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था। दैट इज वन। Second, a lot of scammers are there, a lot of pages who are literally downloading our own videos. Like they are running our videos as ads and राइट, selling those sarees at 50% discount, one third of the price probably. People are placing the order, but they're not getting any products. so राइट, सो स्कैमर्स से बचिए आप। बस बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देखकर मत ऑर्डर करिए। यू डेफिनेटली नीड टू रीड रिव्यूज, ब्रांड रेपुटेशन ऑनलाइन देखना बहुत जरूरी है। प्लेस कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, यू नो, इफ यू आर स्केप्टिकल। सो राइट। ऑनलाइन साड़ी खरीदते वक्त ये सारी गलतियां ना करें। बहुत मतलब अपना रिसर्च जरूर करिए, सारा डिस्क्रिप्शन पढ़िए, ब्रांड रेपुटेशन देखिए, रिव्यूज पढ़िए, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। रेड फ्लैग, हाँ, राइट, राइट, राइट। स्वाति, एक चीज मेरे को समझना था, यू टोल्ड दैट यू आर अ सिंगल फाउंडर, सो हाउ हेक्टिक इज इट फॉर यू, और क्या क्या चीजों में यू आर करेंटली इन्वॉल्व, एंड हाउ बिग इज द टीम राइट नाउ? बहुत ही हेक्टिक है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है मुझसे। जैसा मैंने शार्क टैंक पे भी बोला है कि फाइनेंस सीखने का टाइम नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो दैट इज़ व्हाई द ग्रोथ वाज़ वेरी स्लो। I could not hire a lot of team member. Even today, we have like 2 to 3 people who are working with me. Obviously, our production team is much larger, and राइट, I am not involved in day-to-day production activities. But other than that, I have to oversee a lot of things and especially work on growth and brand visibility a lot. Going forward, hopefully, I'll be able to hire more people and focus on our long-term goals. गॉट इट। दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर 2025, एंड इफ यू कैन गिव स्नीक पीक टू ऑडियंस की व्हाट्स इन द पाइपलाइन फॉर यू फोक्स? और डेफिनेटली हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन करना है। वील इंक्रीज आवर ब्रांड विजिबिलिटी, वी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स इन्हांस करनी है। बहुत सारी चीज़ें हम कस्टमर्स से जो कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं, बट हमने बहुत सारे डिज़ाइन आइटरेशंस करे हैं, बट अदर देन दैट मार्केटिंग आइटरेशंस जो हमें कस्टमर्स जो जिन जिन पिन कोड में हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है। सो बेसिकली वी आर trying to double down on co-creating the entire customer experience with the customers. So राइट। that is my plan for 2025.
Thank you so much, Swati, for taking out time. It was great interacting with you. थैंक यू सो मच शशांक, बहुत मज़ा आया मुझे। Thank you.